Hello and warm wishes to all. Myself Navneet Kumar Pandey from Electronics and Communication Engineering Department in Babu Banarsi Das National Institute of Technology and Management, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am here to teach you a subject microcontroller for embedded system, which is of third year. So let's start. First of all, we study that what is microcontroller. So microcontroller is a small computer on a single chip. In short, we can say that it is a system on chip. So how it is different from that of the microprocessor? Microprocessor is a device which has only CPU which perform ALU and control unit operation. Now in a microcontroller, here it is written that it is a computer with most of the necessary support chips on board, which means that it has a memory space, ROM, RAM and many peripheral devices including in it. It have a 5 major features. They are: first, a CPU which is used to execute a program. In this a kernel is there. Now a RAM where it can store a variable data and the machine code, which means that you can take a general example, let us say that a mobile phone, or you can say that the laptop, any application which store on it under the RAM area. Now next is a ROM part. ROM is that part where you can store the BIOS information which is been designed by a manufacturer. So ROM where the program is to be executed entirely from manufacturer. Next is input output devices. Input output devices that enable the communication with the outside world. So input output devices क्या हुआ? Input output devices आपका वो पोर्ट है, वो एग्जीक्यूटेड फंक्शन है, वो पिन्स है, जब भी आप किसी बाहर की डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसका जो कनेक्शन पिन्स हैं वो आपका IO पोर्ट करता है. लास्ट है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किटरी which provide the clock synchronization and the counterpart for generating the different types of a pulse waveform and different types of a counter. So this is what the definition of microcontroller and what are its features. Next, any microcontroller architecture divide into two types. That first one is a von Neumann architecture and second one is a Harvard architecture. Now you can see that in a von Neumann architecture there is a single area. You can say that there is a single area for storing program and data. But in a Harvard machine, there is a separate memory for storing program and data memory. So that's the major difference between the von Neumann machine and the Harvard मशीन. अब यहीं से हम लोग और भी डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपके पास प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी एक ही जगह है तो इसमें जो नंबर ऑफ पिन्स होंगी वो बहुत कम यूज होंगी. बट अगर हम यही बात करें इसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों अलग अलग जगह पे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पिन्स रिक्वायर होगी. बट द मेजर डिफरेंस इज दैट यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास एक ही जगह है आपको प्रोग्राम और डेटा को फेच करने के लिए. सो हमारे पास जो होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, डिकोड और फेच करने का काम वो यहाँ पे 3 क्लॉक साइकिल्स में यूज होगा. बट यही चीज अगर हम इसकी बात करें तो एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग एंड फेच कैन बी डन अंडर 1 साइकिल. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड मशीन. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज करिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और हमने किसी एक स्टूडेंट को खड़ा किया और कहा जाइए पहले आप चौक लेके आइए. वो चौक लेके आया और फिर हमने कहा जाइए डस्टर लेके आइए. तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही काम को करने के लिए हमें 2 बार उस स्टूडेंट को दौड़ाना पड़ा. यही चीज आपका रिलेवेंट हो जाता है किसमें, हार्वर्ड मशीन में. हार्वर्ड मशीन में क्या है, मैंने दोनों स्टूडेंट को उठाया, एक को कहा जाइए चौक लेके आइए और डस्टर लेके आइए, तो एक ही समय पे हमारे पास दोनों काम हो गए. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड मशीन एंड von Neumann machine. Again, von Neumann machine having a same area for accessing program and data, and for the Harvard machine we have a separate memory for accessing program and data. Now go to the next. So in our syllabus there are 2 types of microcontroller, 8051 and MSP 430. So first of all let's begin with the 8051 microcontroller. 8051 microcontroller is developed by the Intel company
based on a Harvard architecture. Now what is Harvard architecture? Which have a separate area for program as well as data and design in CMOS technology. It is of a 8-bit microcontroller, 8-bit, which means that it can perform any arithmetic and logical calculation up to 8-bit, or you can say that it can send the data up to 8-bit and operate under a 12 megahertz clock frequency. Next is it have a memory space of 128 chip. यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके पास 8051 है, इसके पास टोटल जो एरिया होगा वो होगा आपका 128, जिसमें से 128 एरिया को हम डिवाइड कर देंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें इंटरनल का जो एरिया होगा वो 64 KB का होगा और एक्सटर्नल का जो एरिया वो भी आपका 64 KB में डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8-बिट डेटा बस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जनरली आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास 8-बिट डेटा बस है तो वो कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होगा। तो डेफिनेट सी बात है, जितनी भी डेटा बस बिट की डेटा बसेस होंगी उतने ही बिट का आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा। नेक्स्ट है 16-बिट एड्रेस बस। सो 8051 have 8-bit data bus and 16-bit address bus. Next, it have a 32 general purpose register. Each of are of 8-bit, which is divided into 4 bank. यहाँ पे 4 बैंक होते हैं जिसमें आपके 32 जनरल पर्पस रजिस्टर लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16-बिट टाइमर। देयर आर 2 टाइमर्स, टाइमर A एंड टाइमर B, बोथ आर ऑफ 16-बिट एंड 4 8-बिट IO पोर्ट्स। IO पोर्ट्स अभी हमने बताया था, जब भी आपका एक्सटर्नली डिवाइस होगा तो उसको कनेक्ट करने के लिए जिन पिन की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाता है IO पोर्ट, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे भी हम लोग पिन डायग्राम देखते हैं तो हमेशा हम जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है आईसी की, हम उसको फॉरगेट कर देते हैं। मतलब कह देते हैं कि पिन इसमें बहुत ज़्यादा है तो चलिए इसको रहने देते हैं, पर देखिएगा एक्चुअली में बहुत आसान होता है इसको याद करना। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बिलोंग्स टू अ 40 पिन डायग्राम है इसमें, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा इसको कि पहली बात करते हैं हम पोर्ट 0, 4 तो इसके पास पोर्ट हो गए, P0, P1, P2 और P3। तो ध्यान से देखिएगा P0, P1, P2 और P3, इन्होंने सभी के पास 8 पिन्स हैं, जिसमें से आपके आउट ऑफ 40 जो हैं 32 पिन्स तो एक्वायर हो गई। अब रिमेनिंग कितने पिन्स बची? 8 पिन्स। फिर से देखिएगा P0, P1, P2 और P3, जिसमें आपकी 32 पिन्स यूज हो चुकी है। कहां से? P0.0 से लेके P0.7 तक फर्स्ट पोर्ट, P2.0 से लेके P2.7 तक सेकेंड पोर्ट। बात करते हैं P1.0 से लेके P1.7, दिस इज फर्स्ट पोर्ट अगेन, और थर्ड पोर्ट आपका आ गया P3.0 से लेके P3.7 तक। सो टोटल 32 पिन्स हैड एक्वायर्ड। नाउ with that of the port 0, it perform dual functionality। ध्यान से देखिएगा, dual functionality क्या है? with that of the IO port, it have also address and data bus multiplexed together। इसमें क्या होगा? AD0 से लेके AD7 तक आपके पास एड्रेस बस और डेटा बस एक दूसरे से मल्टीप्लेक्स्ड है। रिमेनिंग आपकी डेटा बस तो एक्वायर हो गई। फिर बात करते हैं पोर्ट 2 की। पोर्ट 2 ऑल्सो परफॉर्म डुअल फंक्शनैलिटी। यहां पे क्या होगा आप देखिएगा ध्यान से, जो रिमेनिंग एड्रेस बस है वो हमने यहां पे यूज कर ली। ठीक है, किसके पास? पोर्ट 2 के पास। पोर्ट 1 रिमेन आइडल, ये केवल आईओ का काम करेगा, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। बात करते हैं पोर्ट 3। पोर्ट 3 के पास कुछ एडिशनल इंटरप्ट की फैसिलिटी है कि जब भी हम इसको बाहर की डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिमेनिंग इसकी जो वैल्यू है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में लाई करती है। अब बात करते हैं कि पोर्ट 3 के साथ कौन कौन सी पिन है। P3.0 और P3.1 के पास आई आपके पास RxD और TxD डेटा, दैट मीन्स रिसीव द डेटा एंड ट्रांसमिट द डेटा। जो भी बाहर की डिवाइस को हमने कनेक्ट किया है तो उससे डेटा को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना किसका काम होगा? RxD और TxD का। नेक्स्ट है देयर आर 2 इंटरप्ट, INT0 एंड INT1। देन देयर आर 2 टाइमर विच आर ऑफ 16 बिट ईच एंड
the remaining are WR bar and RD bar. That means read bar and write bar, which is used to write the data and read the data into 8051 microcontroller. तो ये बात हो गई आपकी 32 पिन की, P0, P1, P2 एंड P3. अब बात करते हैं रिमेनिंग 8 पिन की. 8 पिन में बात करें तो सबसे पहला जो हुआ आपके पास VCC, विच इज यूज टू प्रोवाइड पावर सप्लाई. उसके बाद हुई ग्राउंड, इसको हमें ग्राउंड करना है. रिमेनिंग XTL1 एंड XTL2, इट इज अ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर टू प्रोवाइड क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू द माइक्रो कंट्रोलर. क्या काम करेगा? क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू द माइक्रो कंट्रोलर. अब बात करते हैं हमारे पास रिमेनिंग 4 पिन EA, ALE, PSEN और RST की. हमेशा याद रखिएगा कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन. अगर हम बात करें सबसे पहले EA पिन की, यानी एक्सटर्नल एक्सेस, इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है एक्सटर्नली एक्सेस. मतलब ये क्या काम करेगा? हमने अभी पढ़ा था कि 128 KB का आपके पास मेमोरी है, जिसमें से 64 KB इंटरनल है और 64 KB एक्सटर्नल है. अब जब EA पिन को हम लोग VCC के साथ कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, EA पिन को हमने जब VCC के साथ कनेक्ट किया तो यहां पे लाइन लो हो जाएगी. तब क्या होगा? इंटरनली प्रोग्राम्ड होगा, इंटरनली प्रोग्राम. अब यही EA पिन को जब हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, तो अब यहां पे सिग्नल हाई हो जाएगा क्योंकि EA के ऊपर बार लगा है. अब क्या होगा? यहां पे हम अब एक्सटर्नली एरिया को प्रोग्राम करेंगे, एक्सटर्नली एरिया को प्रोग्राम. और EA पिन को हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, याद रखिएगा. नाउ EA पिन इज यूज्ड to decide whether you want to program the data internally or externally. Next is ALE, that is address latch enable. Address latch enable का क्या काम होता है? To demultiplex address bus and data bus. अब बात करते हैं PSEN की, that is program strobe enable. अब program strobe enable का क्या काम होता है? इसका काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जब आपका EA पिन एक्सटर्नली प्रोग्राम था, यानी जब भी आपका EA पिन एक्सटर्नली प्रोग्राम पे एक्टिव था, तो उस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर अपने पास कितनी देर तक के लिए होल्ड रखे, ये काम करता है PSEN, दैट इज प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल. नेक्स्ट इज योर RST पिन, दैट इज अ रीसेट पिन विच इज यूज्ड टू टर्मिनेट ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर. और जनरली रीसेट पिन क्या करेगा? कुछ रजिस्टर सेगमेंट है जिसको वो वापस इनिशिएट करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग. कौन कौन से? एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और DPTR, दैट इज डेटा पॉइंटर. ये था आपके पास पिन डायग्राम. नाउ ये आपको क्लियर है? सबसे पहले पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. Port 0, port 2 and port 3 perform dual functionality. The remaining pins are VCC, which is used to provide the power supply, ground, XTL2 and XTL1 for crystal oscillator providing clock frequency, EA pin externally access, address latch enable, program strobe enable, and last is your reset pin. Next. Now the register classification of 8051. अब बात करते हैं कि रजिस्टर, कितने रजिस्टर हैं आपके पास 8051. सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर होता क्या है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी. नॉर्मली क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम अपने डेटा को कहीं नोट करते हैं, कॉपी पे, नॉर्मली रजिस्टर पे. तो CPU के पास भी क्या है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर रखे, तो वो किसका काम होगा? द रजिस्टर, विच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी. अब आपका जो रजिस्टर है 8051 में, वो 3 सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, 8 बिट, 16 बिट और SFR, दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. अब 8 बिट में क्या आया आपका? पहली चीज एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर का क्या रोल होता है? Accumulator is used to perform arithmetic and logical unit and also bit manipulation instruction. यानी ALU का काम करेगा और bit manipulation instruction का काम करेगा. Next है आपका B register. B register totally work with that of accumulator. अगर आपका multiply और divide instruction आप use करते हैं तो accumulator अकेले तो perform करेगा नहीं multiply divide, तो किसका हेल्प लेगा? B register का. और अगर एक्यूमुलेटर कहीं किसी बिजी स्टेट में है तो बी रजिस्टर क्या काम करेगा? एक्यूमुलेटर की तरह ट्रीट होगा.
otherwise it will treat as normal scratch pad register. Next there are 4 register bank R0 to R3, that means R0, R1, R2 and R3, each of having 8 register which are of 8 bit each. So 8 register in 4 bank, तो total कितने हो गए 32 general purpose register. Next 16 bit. 16 bit register are of program counter and data pointer. Program counter always point to that instruction which is currently being fetched. So program counter हमेशा वहां पे point करेगा जो current instruction fetch किया हुआ है. डेटा पॉइंटर का रोल क्या है? डेटा पॉइंटर का काम क्या होता है कि जब भी आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, कभी भी सब रूटीन का कॉल आया यानी कॉल कमांड, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर स्विच कर जाएगा किसी दूसरी जगह पे, तो इसका जो प्रीवियस एड्रेस होगा इसको होल्ड करेगा आपका डेटा पॉइंटर. तो डेटा पॉइंटर क्या काम करेगा? ये हमेशा एड्रेस आपका अपने पास एड्रेस रखेगा जब आपका प्रोग्राम काउंटर स्विच कर जाएगा कहां पे? ड्यूरिंग अ सब रूटीन कमांड. नेक्स्ट है आपके पास SFR, दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. नाउ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आर अ रिजर्व्ड फंक्शन रजिस्टर विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन 8051. ये हमेशा इसके रिजर्व्ड कीवर्ड हैं. ये वही काम करेगा जो इसको डिसाइडेड है. कौन कौन सा? आपके पास 4 पोर्ट P0, P1, P2 एंड P3. TMOD टाइमर मोड रजिस्टर, TCON timer control register, TH0 and TL0 which are of timer registers. PSW process status word. अब process status word क्या काम करता है? जब भी आपका ALU ऑपरेशन होगा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच करेगा तो करेंटली उसमें क्या ऑपरेशन हुआ है और बिट का क्या चेंज हुआ है, तो वो डिसाइड करता है आपका प्रोसेस स्टेटस वर्ड. इसमें कौन कौन सी बिट होंगी? पहला कैरी बिट. कैरी बिट जब भी आपने 8 बिट का एडिशन किया और कैरी जनरेट हो गई फ्रॉम द MSB, सो इट विल प्रोवाइड अ कैरी बिट. नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी. ऑक्सिलरी कैरी whenever there would be a carry generated from lower nibble to higher nibble, तो क्या काम करेगा? ऑक्सिलरी कैरी. नेक्स्ट है आपका RS1 और RS0. ये प्रोवाइड करता है कि आप कौन सा बैंक यूज करेंगे. अगर आपने 0-0 दिया तो R0 बैंक, 0-1 तो R1 बैंक, 1-0 तो आपके पास R2 और 1-1 देंगे तो R3. और एक चीज याद रखिएगा, एक समय पे एक ही बैंक सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट है आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग और लास्ट में आपका पैरिटी विच डिसाइड द नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर आइदर इवन और ऑड. सो प्रोसीड टू द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. अब बात करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर में. बहुत आसान है, इसमें से हम सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. देखते हैं. सबसे पहले आपके पास सबसे बॉटम पे ऑक्सीलेटर दैट इज XTL1 एंड XTL2. XTL1 XTL2 क्या काम करेगा? टू प्रोवाइड क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू द एंटायर माइक्रो कंट्रोलर. नेक्स्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में क्या क्या आ जाएगा? PSEN प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल, एक्सटर्नल एक्सेस और रीसेट. नेक्स्ट है आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या रोल है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपने पास वो सारे इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को समझता है जो भी आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में काम करती हैं. अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन गलत दिया है तो ऑटोमेटिकली एरर जनरेट हो जाएगा. 4 पोर्ट हैं आपके पास, पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 0 विच इज यूज्ड फॉर कनेक्शन एक्सटर्नली डिवाइसेस. ये चीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं DPTR विच इज अ डेटा पॉइंटर. क्या काम करता है? ये एड्रेस होल्ड करेगा जब प्रोग्राम काउंटर कहीं सब रूटीन पे स्विच करेगा. नेक्स्ट है आपका PC इंक्रीमेंटर, बफर, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर. नेक्स्ट पार्ट है आपका ROM. ROM क्या करेगा? बायोस की इंफॉर्मेशन दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट. नेक्स्ट है आपका पोर्ट 2. ठीक है, पोर्ट 2 तो डायरेक्टली पोर्ट ड्राइवर इसके साथ कनेक्ट है और पोर्ट 0 के साथ. नेक्स्ट बात करते हैं रैम. रैम आपने पास क्या रखेगा? वेरिएबल इंफॉर्मेशन या फिर मशीन कोड के इंस्ट्रक्शन. उसके बाद बात करते हैं एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर किसी भी 32 जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ परफॉर्म करेगा और ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा. उसके साथ जो भी गवर्निंग होगी किसमें सेव हो जाएगा? PSW दैट इज प्रोसेस स्टेटस वर्ड.
नेक्स्ट है आपके पास बी रजिस्टर विच इज टोटली वर्क इन अकॉर्डेंस विथ एक्यूमुलेटर। अब बात करते हैं this part. This is what area? A special function register. Program control, serial control, timer mode, timer control, timer of higher byte, lower byte, timer of higher byte of second timer and lower byte, serial buffer, interrupt enable, interrupt priority. So this is what the architecture of 8051 microcontroller. Now proceed to the second microcontroller in our syllabus, which is what? MSP 430. Now it can be defined as a mixed signal processor. So mixed signal processor developed by which company? Texas Instrument. अब बात करते हैं कि 8051 अगर हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है तो MSP 430 में कुछ तो एडवांसमेंट होगा, तभी हमने इसको लिया है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? These are these feature: USCI Universal Serial Communication Interface, RTC Real Time Clock, work in calendar mode. USCI भी आपके पास 3 बॉडी गवर्न करता है, कौन सी? UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter. नेक्स्ट है आपके पास इसी में SPI Serial Peripheral Interface, I2C Inter Integrated Circuit means advanced thing, advanced peripheral connectivity in what? MSP 430. DMA Direct Memory Access, Watchdog Timer. Whenever your program is stuck in infinite loop, it will automatically reset your processor. And ADC and DAC, that means it accept analog signal also and digital signal also. That's why it is called to be as a mixed signal processor. याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि why MSP is called to be as a mixed signal processor, your answer is because it accept the data in analog and digital both. Now the remaining features are, it is a ultra low power. सिर्फ स्टैंड बाय मोड पे अगर हम अपने प्रोसेसर को रख दें तो आपका 2.5 माइक्रो एम्पियर का करंट यूज होगा. इट ऑपरेट ओनली 25 गीगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर बात करें हम 8051 पे तो वहां 12 मेगाहर्ट्ज है. इट बिलोंग्स टू रिस्क आर्किटेक्चर. 1.8 वोल्ट इन सिस्टम प्रोग्रामेबल, मतलब अगर बायोस के साथ आप कुछ अनदर मतलब चीजें ऐड करना चाहते हैं तो यू डायरेक्टली रीड एंड राइट फ्रॉम 1.8 वोल्ट. इट हैव अ 16-bit एड्रेस बस एंड 20-bit 16-bit डेटा बस एंड 20-bit एड्रेस बस. Next, UCS, that is Unified Clock System. Unified Clock System means it have a capability for generating 3 different clock signal. यहाँ पे आपके पास 3 different types के clock signal generate होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से fail safe और flexible clocking system इसके अंदर होता है. बात करते हैं next, the architecture of MSP 430. ये है आपके पास architecture of MSP 430. यहाँ देखिएगा बहुत सिंपल है इसका आर्किटेक्चर. MSP 430 यहाँ पे हमने 5 लिखा है, विच मीन्स इट बिलोंग टू द 5th जनरेशन. UCS फर्स्ट इज यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम. इट प्रोवाइड ACLK, SMCLK एंड MCLK, दैट इज ऑक्सिलरी क्लॉक, सब मास्टर क्लॉक एंड मास्टर क्लॉक. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल. अ फ्लैश दैट इज ROM एरिया, RAM एरिया. Next module is your brownout, that is power management. Whenever there is a fluctuation in the microcontroller, so it can be erased. It is done by brownout. Just take an example of you can take जैसे हम लोग घर में MCB miniature circuit breaker का यूज करते हैं, कभी भी फ्लक्चुएशन हुआ तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा, ऐसे ही आपका ब्राउनआउट. नेक्स्ट है वॉचडॉग टाइमर. अगर आपका इनफाइनाइट लूप पे कहीं सॉफ्टवेयर स्टक हो जाए तो वॉचडॉग टाइमर आपका एक्ट करेगा. नेक्स्ट है आपके पास आईओ पोर्ट्स. देयर आर 11 आईओ पोर्ट्स. वहां पे कितना था 8051 में? 4 आईओ पोर्ट्स. यहाँ पे 11 आईओ पोर्ट्स, अप टू विच P1 से लेके P10 तक सभी 8 बिट के होंगे और कंबाइनली अगर एक्ट करेंगे तो 16 बिट का होगा, ठीक है. और सिर्फ 11 जो पोर्ट 11 होगा ये 3 बिट का होता है. नेक्स्ट है आपके पास DMA चैनल. देयर आर 3 DMA चैनल टू ट्रांसफर द डेटा टू द एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस. अगर आपका पहला बिजी स्टेट में हो, सेकेंड बिजी स्टेट में हो या थर्ड बिजी स्टेट में हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी चैनल के साथ 1, 2 और 3 कहीं पे भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नली कनेक्टेड है.
सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में 3 USB पोर्ट हैं, तो किसी के थ्रू भी आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू एनी मीडियम. Next is your ADC and DAC channel, analog to digital and digital to analog converter. USCI module, which is having UART, SPI and I2C for transferring the data to the externally connected devices. CRC, cyclic redundancy check, which means that जब भी आप बाहर का डेटा आपने रिसीव किया या ट्रांसमिट किया, उससे जो एरर जनरेट हुआ तो कौन आपको बताएगा? CRC, cyclic redundancy check. नेक्स्ट इज RTC, रियल टाइम क्लॉक, कैलेंडर मोड. सबसे अच्छा एग्जांपल RTC का, आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पे जब भी इंटरनेट चलाएं उसका टाइम पीछे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो होगा क्या? आपका गूगल या आपका मेल ओपन नहीं होगा. वाई? बिकॉज ऑफ द RTC, दैट इज अ रियल टाइम क्लॉक. नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर 2 टाइमर, टाइमर ए एंड टाइमर बी. टाइमर ए कंप्राइजेस ऑफ 5 कंपेयर कैप्चर एंड 3 कंपेयर कैप्चर, एंड टाइमर बी कंटेन 7 कंपेयर कैप्चर मॉड्यूल. Next is your multiplier block. Multiplier block, you can directly multiply up to a 32 bit, यानी साइंड और अनसाइंड नंबर तक आप लोग 32 बिट तक इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी एडवांस फीचर. सेकेंड लास्ट है आपका JTAG और स्पाई बाय वायर. अब JTAG और स्पाई बाय वायर काम क्या करता है और क्या चीज़ होता है? सबसे कॉमन लैंग्वेज में देखें कि फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो USB पोर्ट हुआ, सो दैट USB पोर्ट गवर्न अंडर JTAG एंड स्पाई बाय वायर. सो लास्ट इज CPU, that is a CPU and working register. CPU, which is the heart of microcontroller for performing ALU operation, and working registers, there are normally which is used to perform or store data temporarily. So next is, this is what the register of MSP 430. So register belong to R0 to R15, where R0, R1, R2 and R3 are for डेडिकेटेड फंक्शंस, एंड R4 से लेके R15 तक आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसको, इसमें एक बड़ी कॉमन सी फीचर है कि आप R4 से R15 तक कोई भी रजिस्टर को, कोई भी जो जनरल पर्पस रजिस्टर हो, इसको एक्यूमुलेटर के साथ ट्रीट कर सकते हैं. और R0 प्रोग्राम काउंटर, R1 स्टैक पॉइंटर, R2 कांस्टेंट जनरेटर और R3 भी कांस्टेंट जनरेटर. सो दिस इज व्हाट अ रजिस्टर in MSP 430. So going with the question related in the first module, what we had covered, what is the difference between microprocessor and controller, the pin diagram of 8051, the architecture of 8051, externally means to say that explaining the EA, PSEN on RST pin, register segment of 8051 divided into 8-bit, 16-bit and SFR, and architecture of MSP 430, and lastly the register segment of MSP 430, which is R0 to R15. So that's enough for the first module. Thank you.